we thank you, Lord, again, and we commit to you the rest of the day and our service, whether we worship you by praying, by singing your song, your words, by listening to your word, or by giving, Lord. And we also pray for today's Lord's Table nomination installment. Lord, I pray and we commit to you everything that we do today. We want to honor you and give glory to you. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, our Lord called us to worship, right? He called every churches, right? Every creatures and every nation to worship Him, right? So we are here to worship Him. प्रभु ने हमको बुलाया गया उनके सृष्टि किया हुआ हर कलीसिया को, हर नेशन को कि उनका आराधना करें। नहीं, हम यहाँ पे क्यों हैं? प्रभु का आराधना करें। तो अभी गीत के द्वारा थोड़ा प्रभु का आराधना करते हैं। Let's sing this song, राजा दी राजा सबसे महान. This song talks about God is our God is the King of Kings and the Lord of Lords. Can stand and sing this. राजा निराजा सबसे महान, सिंहासन पे जो विराजमान, मिल गए धरती और आसमान, सर्व सामर्थी यीशुआ। राजा निराजा सबसे महान, सिंहासन पे जो विराजमान, मिल गए धरती और आसमान, सर्व सामर्थी यीशुआ। यीशुआ टूटे हर बंधन यहाँ, यीशुआ खिल जाए सारा जहाँ, यीशुआ जय की है घोषणा, यीशुआ यीशुआ। यीशुआ टूटे हर बंधन यहाँ, यीशुआ खिल जाए सारा जहाँ, यीशुआ जय की है घोषणा, यीशुआ यीशुआ। सेनाओं का यहोवा सबसे महान, हर एक हृदय पे जो विराजमान, मिल गए धरती और आसमान, सर्व सामर्थी यीशुआ। सेनाओं का यहोवा सबसे महान, हर एक हृदय पे जो विराजमान, मिल गए धरती और आसमान, सर्व समर्थी यीशुआ। यीशुआ टूटे हर बंधन यहाँ, यीशुआ खिल जाए सारा जहाँ, यीशुआ जय की है घोषणा, यीशुआ यीशुआ। यीशुआ टूटे हर बंधन यहाँ, यीशुआ खिल जाए सारा जहाँ, यीशुआ जय की है घोषणा, यीशुआ यीशुआ। तेरी हो महिमा यीशुआ यीशुआ। गाए जहाँ तेरा नाम यीशु नाम, तेरी
Yeshua, गाए हैं जहाँ तेरा नाम यीशुआ। One more time. तेरी हो महिमा यीशुआ, यीशुआ, गाए हैं जहाँ तेरा नाम यीशुआ, यीशुआ, टूटे हर बंधन यहाँ यीशुआ, खिल जाए सारा जहाँ यीशुआ, जय की है घोषणा यीशुआ, 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 टूटे हर बंधन यहाँ यीशुआ, खिल जाए सारा जहाँ यीशुआ, जय की है घोषणा यीशुआ, यीशुआ। Let's continue to worship the Lord by singing this song. All creatures of our God and King, lift up your voice and with us sing. All creatures of our God and King, lift up your voice and with us sing. Oh, praise Him, Alleluia. Thou burning sun with golden beam, thou silver moon with softer gleam. Oh, praise Him, oh, praise Him, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Let all things their Creator bless, and worship Him in humbleness. Oh, praise Him. Oh, praise Him, Alleluia. Praise, praise the Father, praise the Son, and praise the Spirit, three in one. Oh, praise Him, oh, praise Him, Alleluia, Alleluia, Alleluia. All the redeemed washed by His blood, come and rejoice in His great love. Oh, praise Him, Alleluia. Christ has defeated every sin. Yes. Cast all your burdens now on Him. Oh, praise Him. Oh, praise Him, oh, praise Him, Alleluia, Alleluia, Alleluia.
हमारा गीत, हमारा प्रार्थना, जो हम वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, हम दान देते हैं, जो भी करते हैं, हम यीशु मसीह से जुड़े हुए हैं। जो हमारा जीवन के द्वारा प्रभु मसीह का महिमा हो। मैं नहीं जानती कि आप लोग का जीवन में क्या चल रहा है ये हफ्ते, हर दिन, लेकिन प्रभु जानते हैं। So let's worship Him by singing this song. His glory is my good. I have seen my Father's glory revealed in Jesus Christ. And the more that I behold Him, the more He satisfies. When I gaze upon His beauty, when I see Him as I should, then my eyes are lifted upward for His glory and my good. To our God be the glory, to our God be praised, He alone, the name above all names. I will boast ever only in the Lord my God, for I know His glory is my good. There is hope in every trial, for I can trust the Lord. He will turn my heart towards Him and help me bear the thorn. So in faith I follow Jesus on the road not understood, for I know that He is working for His glory and my good. To our God be the glory, to our God be praised, He alone, the name above all names. I will boast ever only in the Lord my God, for I know His glory is my good. See the open arms of Jesus upon the cross that day. What they understood as weakness deserves my every praise. For the charge that was against me, it was nailed into the wood. Yes, I know that He has saved me for His glory and my good. To our God be the glory, to our God be praised, He alone, the name above all names. I will boast ever only in the Lord my God, for I know His glory is my good. Would I gladly be made nothing, that Christ would be made more? Would I seek the only kingdom that far outweighs them all? I will stand before my Father, where the faithful saints have stood, and with joy my heart shall praise Him for His glory and my good. To our God be the glory, to our God be praised, He alone, the name
May I ask Denny to pray? Father, we thank you for today. Thank you for letting us gather here at church here at CBC. We pray for today that we would have hearts that truly see you as you are, to see that you are working here mightily, and you are doing your good work in the hearts of these people. Help us to take away any pride we might have in our own human ability, and to see that you alone are the one that works in the hearts of people. You're the one that softens our hearts and turns our hearts towards you. We love you. We thank you. Thank you that in every trial we can come to you and we can give you glory and praise. For you alone are worthy of all our praise. You deserve all the glory that is due to you for all that you've done on the cross, for taking away the sins of man and placing them on your shoulders. Help us to see that today and worship you today for that. We praise you. We thank you in Jesus' name. Amen. तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान भंवर के बीच में। तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। पीट कर मैं तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में। तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा। तू ही मेरी शिफा बीमारियों में। तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा। तू ही मेरी शिफा। गीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में। तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना
सका ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना बीमारी देख तेरा सर झुका मुझ पर तेरा बस ना चल सका ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान Lord, you are our rock. Our salvation belongs to you, Lord. Your people here, standing here, and worshiping you with our broken words and the music, Lord. And we want to give all glory to you, Lord. Thank you for being our God in the midst of storm or in our sickness, in our problems, and whenever we have good times also, you are always there, Lord. Thank you so much for being our God and help us to worship you by listening to your word, Lord. And we want to give all glory to your name. In Jesus' name we pray. Amen. May you be seated. परमेश्वर एक जो प्रभु के काम के जो विपरीत हैं उनको अपने महिमा के लिए इस्तेमाल, तो इससे हम बहुत उत्तेजना मिलता है कि कैसे प्रभु हमें किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है. So we thank God how he uses his grace abound for all of us. So let's continue. Let's welcome Pastor Jason again, तालियों से, and Kundan to please come and preach God's word tonight. I actually didn't know this was going to be translated. I thought they said there wasn't going to be, but I'm glad that it's going to be translated now. Thank you so much for having us and our team. I just wanted to say a couple of thank yous, if that's okay. I wanted to thank, first of all the staff and the people who serve here, who have particularly helped us by giving us rides, going with us to places, and just taking care of us. So I just want to thank you for doing that for us. तो धन्यवाद देना चाहते हैं ये पास्टर जी सबको, खास करके यहाँ पे इनको शामिल होने के लिए, इनके पूरे टीम के लिए, और ख़ास करके जो आप में से बहुत सारे लोग इनका मदद कर पाए, सहायता कर पाए यहाँ से वहाँ जाने में, या यहाँ पे जो सेवकाई कर रहे हैं उसमें मदद किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं आपका. And there's a lot more I can say, but hopefully I'll be able to say it, or we will be able to say it more personally to those of you that we've interacted with throughout the week. तो बहुत कुछ है कहने के लिए, आपको धन्यवाद देने के लिए, तो कुछ मिल के भी आपसे बात हुआ और बाकी अभी मिलेंगे और फिर बात करेंगे. I also want to say thank you to the team. A couple of them are going up now to do the children's ministry, but so thankful for our team, and
I just am so grateful for their humility and flexibility and just making it such a joy to serve together. और ये अपने टीम को भी धन्यवाद देना चाहते हैं जो भाई बहन आए हैं काफ़ी दूर से यहाँ पे सेवा करने के लिए, कि किस तरह से समय को देखते हुए, और कई बार हमारा समय इनका समय थोड़ा सा अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे सेवा कर पाए। तो अपने टीम के सभी सदस्यों को भी धन्यवाद करना चाहते हैं। So last week we talked about 1 Timothy 1:12-14, the first part of Paul's testimony, and today we're going to finish off the second half, but we're going to look at this time specifically at this idea of Paul saying that he is the foremost of sinners. तो सबसे पहले पिछले हफ्ते हमने देखा था पहला तिमोथी में से अध्याय 1 का 12 से 14 देखा था, जो पौलुस की गवाही थी और उसका पहला भाग था। लेकिन आज हम देखेंगे उसके दूसरा भाग, जो आज हम देखेंगे पौलुस की गवाही का दूसरा भाग वो होगा कि जो बोलता है पापियों में सबसे बड़ा पापी के बारे में बात होगा आज। Because he sees himself as the foremost of sinners that he truly appreciates and loves the perfect patience of Jesus Christ for him. तो क्योंकि वो देखता है अपने आप का पहचान जो है, वो अपने आप को इस रीति से देखता है कि सबसे बड़ा पापी हूं मैं, ऐसा वो कहता है। इसीलिए परमेश्वर का जो सबसे सिद्ध जो सहनशीलता है, जो पूर्ण सहनशीलता है, उसको समझ सकता है वो। I know that it's hard to see a clear night sky here in Delhi. तो यहाँ पे दिल्ली में प्रदूषण वगैरह के कारण आसमान साफ दिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। In our neighborhood where I'm from, because of the city lights, I cannot see the stars as well, right? Unless it's a very dark and clear night. तो जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे भी बोला कि दिन के समय में रोशनी की वजह से पूरी तरह से तो आसमान नहीं दिखता है, लेकिन रात में दिखता है। But when you get a chance to see a night sky as it's really meant to be, you see just the whole thing littered and dotted with diamonds shining all across the sky. लेकिन जब सचमुच में आपको पूरी आसमान साफ साफ दिखाई दे, आसमान की तरफ अगर चेहरा करें तो पूरा जगमगाता हुआ नजर आता है, पूरा जहां जगमगाता हुआ नजर आता है, आसमान पूरा साफ नजर आता है, स्पष्ट दिखाई देता है। And this is why jewelers, when they show you gems or diamonds, they put it against the black backdrop, right? तो इसीलिए जो ज्वेलरी वाले काम करते हैं लोग जेवरात के, तो वो हमेशा नीचे काला परत लगाते हैं ताकि वो पूरी स्पष्टता से दिख सके जो भी उसके पास पत्थर होते हैं या जवाहरात होते हैं। So it's only against the background of our sins, that the truth of who God is in the gospel gets revealed to us. जब इस बात का प्रतीति कर लेते हैं, महसूस कर लेते हैं कि हमारे पाप की गंभीरता के बारे में, तो हमारे परमेश्वर के शौर्य के बारे में, परमेश्वर की महानता के बारे में बहुत स्पष्टता से दिखाई देता है। And that is Paul's testimony, and that is everyone's testimony who is a believer in this room. यही है पौलुस, जो प्रेरित पौलुस है, उसकी गवाही भी यही है, और हम में से जितने भी आप यहाँ पे हैं विश्वासी लोग, उनका भी गवाही ऐसा ही है कुछ। And you don't have to have Paul's past in order to see that. Because when you know Christ, you will, as verse 14 says in 1 Timothy 1, you'll know that his grace has overflowed for you. तो जब हम अपनी गवाही के बारे में बात करते हैं तो हमारा जरूरी नहीं है कि पौलुस की तरह हमारा भी बीता हुआ कल होना चाहिए, लेकिन जब हम देखते हैं खास करके पहला तिमोथी का अध्याय 1 का 14 में, परमेश्वर का अनुग्रह जो होता है वो खुद ही सामने ले आता है सब कुछ हमारे। So with that in mind, let's look at point number 1, and this is the greatest sentence in the world, verse 15. तो इसको याद में रखते हुए हम देखते हैं आज के प्रचार का सबसे पहला बिंदु है कि दुनिया का सबसे बड़ा वाक्य पहला बिंदु है। The Apostle Paul writes this, that the saying is trustworthy and deserving of full acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the foremost. वचन 15 में कहता है, यह बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें से सबसे बड़ा मैं हूँ। What is this faithful word that is worthy of your full belief, your full reception? What is that? यहाँ पे जो बोला है कि हर प्रकार से मानने योग्य है, ये हर प्रकार से मानने योग्य क्या है? And it's point A, the mission of Jesus Christ, the mission of Christ. तो बिंदु पहला का और इसका पहले का भी पहला है कि यीशु का मिशन, यीशु का लक्ष्य क्या है? I mean, it's very simple, right? It says he came down into the world to save who? To save sinners. तो यहाँ पे ये बहुत स्पष्ट बताया गया है कि वो यहाँ पे किस लिए आया? पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। He came to rescue us. He came to pick us up out of a desperate situation. वो हमें बचाने के लिए आया, हमें निकालने के लिए आया वो सबसे मुश्किल भरे हालातों से। Because our whole life was on a collision course with this oncoming train.
And that- लेकिन हमारा पूरा जो जिंदगी था वो ऐसा लगा था कि टकराने वाले हैं हम, समझ लो एक पापी बहुत बड़े पाप की तरह ट्रेन है, उसमें टकराने वाले हैं, can't escape it, हम and there's बच no नहीं way सकते। out. हम नहीं बच सकते हैं और वहाँ पे कोई रास्ता नहीं है हमारे लिए। That is God's wrath for our sins. हमारे पाप के लिए परमेश्वर का क्रोध है वो। But instead of telling us, instead of saying, you need to figure out a way out or work harder, what happens? The eternal Son of God comes down to pick us up. परमेश्वर ऐसा नहीं कहते हैं कि भाई तुम्हारा परेशानी है, तुम खुद ही झेल लो, खुद ही देख लो क्या क्या करना है। नहीं, इसके अलावा क्या देखते हैं हम कि वो परमेश्वर का पुत्र यहाँ खुद आता है उस समस्या का समाधान लेकर। And he comes down and he takes on a full human nature वो आता है, पूरी तरह से मनुष्य बनता है वो, and experiences the whole range of human life. मनुष्य का प्रवृत्ति जो है पूरी तरीके से अनुभव करता है, वो किस तरह से हाव भाव होना चाहिए इंसान का, वो सब अनुभव करता है। He feels weakness, he feels emotions, and he's even tempted, yet without sin. वो हर तरह का कमजोरी हो हमारी भावनाओं से होकर गुजरा है, यहाँ तक कि परीक्षा में भी पढ़े हैं, वो प्रलोभन में भी पढ़े हैं। And so living a perfect human life, he fulfills God's law for us. परमेश्वर की व्यवस्था को उसने पूरा किया इस रीति से कि वो एक सिद्ध मनुष्य का जीवन जिया। And at the end of that life, what did he do? अपने जीवन का अंत में उसने क्या किया? He obeyed his father all the way to death on a cross, did he not? उसने अपने पिता की आज्ञा इस कदर मानी कि हाँ उसने अपना जान भी क्रूस पर दे दिया, Where he paid the penalty for our sins, which is the penalty of death, of separation from God. उसने हमारे पापों का दाम चुकाया। और हमारे पापों का कीमत क्या होता? परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो जाना, लेकिन उसने चुकाया उस दाम को। So he stood in front of us and took the full brunt of that oncoming train. तो वो हमारे आगे खड़ा हुआ ताकि जो वो आने वाला जो तूफान था, ट्रेन का जो धक्का था, वो हमको ना लग सके, वो हमारे सामने आ खड़ा हुआ। But in order to make Christ and what he did our own, what do we have to do? तो यीशु मसीह ने हमारे लिए जो किया, हमें क्या करना है उसको, उसके आदर के लिए, उसके सम्मान के लिए, उसके जवाब के लिए? He comes down to save sinners. He dies for our sins. And John 3:17 says, "For God did not send the Son into the world to judge the world, but that the world might be saved through him. He who believes in him is not judged." तो हमें क्या करना, हमारी क्या प्रतिक्रिया होना चाहिए? वो था परमेश्वर का पुत्र, वो इस दुनिया में आया, उसने हमको बचाया। तो यूहन्ना 3:17 में कहा, परंतु परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। And that's what belief is. It's grabbing on to Christ, right? And to be rescued from our sins as he lifts us up. इसका मतलब यही है कि यीशु मसीह को पकड़े रहना, और यीशु मसीह क्योंकि वो हमारे छुटकारा के लिए आया है, वो हमारा छुटकारा दिया है उसने। Everyone in this room who's a believer, when you were saved and when you got baptized, what did you confess? You confessed that he died for not sins in general. You said he died for my sins personally. इस रूम में जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पे इस कमरे में, जिनका उद्धार हो गया, जिन्होंने अपने पापों से पश्चाताप किया, बपतिस्मा लिया है, क्या उन्होंने गवाही दिया था कि क्या उनके जीवन में बदलाव हुआ है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए आया है? ये नहीं कि आज से सामान्य रूप से किसी के भी पापों का, लेकिन व्यक्तिगत रूप से बोला मेरे पापों के लिए आया है। And when we stop to think about this high cost of salvation, we realize we must have been in such a terrible shape. जब हम देखते हैं इस उद्धार का इतना बड़ा कीमत चुकाना पड़ा था, तो फिर हमें एहसास होता है कि जरूर ये बहुत बुरा होगा, बहुत विकृत होंगे हम, हमारा पाप बहुत ही दुष्टता वाला होगा। So this is point B, the misery of sinners. और ये है पहले का दूसरा बिंदु कि पापियों का दुख। So you don't call fire engines unless the house is burning down. जब तक घर पूरी तरह से जल ना जाए तब तक नहीं कहते हो कि अरे आग लगी हुई है। And you don't send the eternal Son of God from his glorious throne in heaven unless there is a serious problem. और जो हमारा अनंत काल का परमेश्वर का जो पुत्र है, उसको स्वर्ग से इस पृथ्वी में तब तक नहीं भेजा जब तक कि पता न चला कि पाप कितना गंभीर है, कितना बुरा है। We don't just need a little bit of spiritual help, like a little boost, like you're just mildly sick and you just need a little bit of medicine. हमें ये नहीं था कि अच्छा थोड़ा सा परमेश्वर का जरूरत था हमें, क्योंकि थोड़ा सा बीमारी था, हल्का फुल्का था, हो जाएगा काम। No, we are sinners. And so there is nothing that we can do to be acceptable to God. हम पापी हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं कि परमेश्वर के सामने हम ग्रहण योग्य हो सकें, इसके लिए हम नहीं कर सकते कुछ भी। Now, one way, a good way of picturing what a sinner is the idea of being lost. तो एक क्या तरीका हो सकता है इसको समझने के लिए कि पापी का मतलब क्या होता है, कि समझ लो खो गए हैं हम। Have you ever been physically lost somewhere, maybe without a map or without a phone, maybe when you were little? आप कभी खोए हैं
जब छोटा भी हो सकता है, कभी छोटे में खो गए हों और कुछ नहीं है, कहाँ जाना है वापस पता नहीं, Nothing looks familiar to you because you've strayed from safety. And even if it's familiar, you're frightened and you're panicking because you don't have your parents. You're hopeless. खोने का क्या एहसास होता है जब आप खो जाते हैं? तो क्या लगता है वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता है, ऐसा नहीं लगता है अच्छा ये सब तो मुझे देखा है। अगर मान लो देखा भी है लेकिन लग गया कि खो गए हैं तो वहाँ पे लगता है असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, मम्मी पापा से अलग हैं या जो भी हमें बचाने वाला है उससे अलग हैं। And we've all strayed from our Creator. हम सब दूर हो गए हैं अपने सृष्टिकर्ता से। And though you and I, the world, they know their family, they know their home and their work, they are terribly, terribly spiritually lost. हो सकता है हम अपने माता पिता को जानते हैं, अपने घर को जानते हैं, अपने काम काज को जानते हैं, ऐसा लगता है कि हम तो कहीं गए नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पाप के कारण हम बुरी तरीके से खोए हुए हैं। And so our situation is infinitely worse than a lost child. तो अगर हम अपनी परिस्थिति का सचमुच में वास्तविक रूप से मुआयना करें तो पता चलेगा हम तो बहुत बहुत बुरी तरीके से खोए हुए हैं। But even as a parent's heart breaks, looking for their lost child, our Lord's heart breaks for us. जिस तरह से एक माता पिता का दिल दहल जाता है जब पता चलता है उसका बच्चा खो गया है, उसी तरह से बोलता है कि हमारा परमेश्वर भी है, जब हम खो जाते हैं तो उसका भी दिल दहल जाता है। When Jesus saw a straying, lost Jerusalem, he wanted to take up all the people into his arms like a mother hen does to her baby chicks. यीशु मसीह ने देखा यरूशलेम में बहुत सारे लोग हैं जो खो गए हैं, इधर उधर भटक गए हैं। यीशु मसीह को लगा जैसे माँ अपने बच्चे को अपने गोद में लेती है वैसे ही सबको ले लेना चाहते थे। So a parent intensely, feverishly looks for their lost child, and Christ comes to us in his love. जिस तरह से जो माता पिता होते हैं वो देखते हैं, बहुत ही ध्यान से देखते हैं उनका बच्चा जो खो गया है या इधर उधर, उसी तरह से मसीह भी आया हमें ढूंढने के लिए, वैसे ही देखते हुए, निहारते हुए। For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Luke 19:10. तो लूका के 19:10 में कहा गया है क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। I think it's important to realize it says that he came to seek, he came to actually look for us. और यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो वचन में लिखा है खोए हुए को ढूंढने के लिए आया, वो देख रहा है, ढूंढ रहा है वो। So that for each one of us individually, he came to find us in our lostness. ताकि वो हम सबको व्यक्तिगत रूप से हमें पा सके क्योंकि हम खोए हुए हैं। And when Jesus came to seek and then save Saul or Paul, he did it to make an example out of him in a powerful way. यीशु मसीह ने जब हम जैसे खोए हुए को पाने के लिए आया, जब ढूंढने के लिए आया, तो यहाँ पे हम देखते थे साउल था जो पौल बना प्रेरित, उसने भी इसको इस तरह से जताया। And so this is point number 2, from the greatest sentence ever written to the greatest human model or the greatest human example. ये चलते हम बिंदु दूसरे की तरफ। पहला बिंदु हमने देखा था दुनिया का सबसे बड़ा वाक्य, और दूसरा बिंदु है कि हर एक के लिए एक महान आदर्श मनुष्य ठहरा। Paul says in verse 15 that Christ Jesus, he came to the world to save sinners. And of the group of sinners, Paul says, I am the foremost. वचन 15 में कहता है मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें से सबसे बड़ा मैं हूं। Foremost, right? And this is point A, the chief or the foremost of sinners. इसमें बोलता है कि जिसमें सबसे बड़ा मैं हूं, और इसमें देखेंगे दूसरे का बिंदु पहला है जो बोला पापियों का प्रधान, सबसे बड़ा। That word means at the head of the line or like the top of the class. और इसमें बोला जाता है कि सबसे बड़ा जो हो सकता है, किसी भी श्रेणी में सबसे ऊपर जो होगा, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। But that's not an honor here. It's not a gold medal, right? This is at the top of the class of what? Of sinners. तो यहाँ पे जब बोला सबसे बड़ा, यहाँ पे सबसे बड़ा कोई अच्छी बात नहीं है, आदर योग्य की बात नहीं है, यहाँ पे कोई प्रतिफल नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे बोल रहा है सबसे बड़ा पापी के बारे में बात हो रहा है। And what's amazing about the Apostle Paul is that he says not I was the chief of sinners or the first, but he says I am currently the foremost of sinners. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कहा जिनमें से सबसे बड़ा मैं हूँ। यहाँ पे ये नहीं कहा कि सबसे बड़ा पापी मैं था, लेकिन बोला गया मैं हूँ अभी भी। What does he mean by this? इसका मतलब क्या होता है? How could you even know? आप कैसे पता भी कैसे चलेगा कि बड़ा कितना बड़ा पापी है? No, of course, Paul is not saying that he's actually the very worst possible sinner in the world. यहाँ पे पौलुस का कहने का ये मतलब नहीं है कि सबसे घिनौना पापी है यहाँ पे, सबसे दुष्ट पापी है यहाँ पे। What he's saying is that when he thinks about his own sins, he feels the vast weight of them on his heart.
लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब वो अपने खुद के पाप के बारे में सोचता है पौलुस, तो उसका जो पाप का जो है जो गंभीरता है वो उसको महसूस कर रहा है. He thinks back to all the evil that he did in his past. जितने भी बुराई उसने किया है पहले, वो सब के बारे में सोचता है. But then, as he looks at himself right now, he sees all the wickedness that still remains inside of him. जब वो अपने अंदर देखता है झांक कर, तो वो कहता है कि अरे ये सारी बुराई जो मैं किया करता था वो है मुझ में. And here, think about it. Each of us knows ourselves better than anyone else does, right? ये भी बात सही है कि हमें से सब अपने बारे में सबसे बेहतर जानते हैं. हमारे बारे में हमसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है. So Paul is saying, of all the sinners that I personally know, I'm the number one of all of them. तो पौलुस कहता है जितने भी पापियों को मैं जानता हूँ उनमें से सबसे बड़ा पापी मैं हूँ. But this shouldn't surprise us. लेकिन ये हमें हैरान करने वाली बात नहीं है. Even though sadly, it does too often because we think a little bit higher of ourselves than we ought to. लेकिन अक्सर हम हैरान हो जाते हैं इस बात को समझने के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है हम तुलना में अपने आप को थोड़ा ज़्यादा बेहतर बताते हैं. But Mark 2:17 says this. It says, "It is not those who are healthy who need a physician, but those who are sick. I did not come to call the righteous, but I came to call sinners." मरकुस 2:17 में कहता है, यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा कि भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है. मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ. He came to call the unrighteous, the people who say, "I am so sick, I can never heal myself." अधर्मियों को बुलाने के लिए यीशु मसीह आया है. वो व्यक्ति जो कहता है मैं बहुत बीमार हूँ, मैं अपने आप ठीक नहीं हो सकता हूँ, उसके लिए आया है यीशु मसीह. And he came to heal people who right now, as believers, understand that anything good in them is 100% because of Jesus Christ. तो यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि वो ठीक करने के लिए आया है जो लोग सचमुच में बीमार हैं, बुराई के लिए आए हैं, और अगर उस व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छाई है तो वो 100% यीशु मसीह की तरफ से है. But we can only see this clearly when we stop comparing ourselves to others and we compare ourselves to Jesus Christ. हम इसको स्पष्टता से देख पाएंगे और भी बेहतर तरीके से देख पाएंगे जब हम अपनी तुलना करना दूसरों से बंद कर देंगे और मसीह की तरफ हमें देखेंगे उस तुलना में. See, when you put yourself against the blazing sun of the glory of Christ, it exposes you for who you really are. यीशु मसीह के वो धधकता हुआ हम देखते हैं उसके जो महिमा की तरफ, जब हम उसकी तरफ देखते हैं तो वो दिखाता है कि हम कौन हैं, हमारा अस्तित्व दिखाता है वो. But if you're looking out here towards each other, whether in the church or in the world, aren't you always going to find someone worse than you? You can always find someone worse than you. लेकिन अगर आसपास अपने देखें, इस दुनिया में देखें, तो हमेशा तुलना करने में लग जाएगा कि अरे मुझसे भी बदतर लोग हैं यहाँ पे, मुझसे भी बुरे लोग हैं इस दुनिया में. And you'll always find something negative, something bad to point out in others. और हमेशा हमको कुछ ना कुछ मिल जाता है किसी दूसरे में, अरे इसमें तो ये कमियां हैं, इसमें तो वो कमियां हैं, कमियां ढूंढ लेते हैं. It doesn't mean that you can't ever talk about someone else's sins. Of course, there's a proper way to do that. हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी के बुराई के बारे में या पाप के बारे में कभी बोले ना, लेकिन उसको बोलने का भी एक तरीका होता है. But what can help you do that well is if you stop comparing yourself to others and you compare yourself to the one who has no dirt on him at all. तो यहाँ पे दिक्कत की बात क्या है कि हमें तुलना करना बंद करना है आसपास के लोगों से जिनसे लगता है कि हम बेहतर हैं, और हमारी तुलना करना है उससे जो 100% ठीक है, जो सिद्ध है, उसके सामने आना है हमें. He is so pure and so radiant and so holy that if you come anywhere near Christ as a believer, all the sins that are deep within will be so clearly seen. क्योंकि मसीह बिल्कुल शुद्ध है, 100% शुद्ध है, सिद्ध है, वो पवित्र है, उसके अंदर कोई बेशुद्धियां नहीं है. जब हम उसके सामने में आते हैं तो हमारी सारी बुराई, हमारे सारा गड़बड़ी तुरंत नजर आ जाता है. So a big part of our growth as a believer is in a way a growth downward. तो एक विश्वासी होने के लिए अगर बढ़ना है तो वो है नीचे की तरफ बढ़ना है, जो बुराई पाप की जो तुलना में देखते हैं. See, James 1:21 says that we are to put away, we're to throw away all the filthiness and overflowing wickedness that still remains inside of us. यहाँ पे देखते हैं याकूब 1:21 में बोला गया है कि सारी मलिनता और बैर भाव बढ़ती को दूर कर दें, सारे अलग कर दें अपने अंदर से. So we'll see that kind of rampant full wickedness when we're comparing ourselves and we're next to Jesus Christ, and the more time we spend with him, the more good that it will do our hearts. तो हम देखते हैं जब हम अपनी तुलना करने लगते हैं किसी और के साथ में, तो हम मसीह के सामने में आते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि उस तुलना में, मसीह से तुलना में और बाकी लोगों की तुलना में हम कौन है और हमारे अंदर कितनी बुराई है.
And you see, the more time you spend with people that are disciplined, that are good, kind, humble, it's interesting, right? You start to pick up their traits and their practices and habits. जब भले इंसान के आसपास आप रहते हैं, अच्छे लोगों के आसपास में रहते हैं, तो फिर देखते हैं उनके चरित्र से, उनके जीवन जीने का तरीके से देखते हैं और फिर पता चलता है कि अच्छा ये चीज़ें होती हैं इनमें. It's true. The company that you keep does mold your character to a large degree. ये सच है, जिस तरीके के लोगों के संगति में रहते हैं, संगति का प्रभाव होता है उसका हमारे ऊपर. So how much molding does the company of Christ do on you? लेकिन मसीह की संगति में अगर आप रहते हैं तो उसका प्रभाव आपके ऊपर कितना पड़ा है, कितना असर आया आपके अंदर में. The more time you spend with Christ, the more fellowship you have with Christ, it's true, you become more like Him. You want to be more like Him. मसीह की सहभागिता में, उसकी संगति में जितना ज़्यादा समय बिताते हैं आप, जितना ज़्यादा होते हैं, उतना ज़्यादा उसका चरित्र का वो प्रभाव आपके चरित्र के ऊपर आता है और फिर हमारे अंदर वो बदलाव आता है सकारात्मक. And you will start to think less highly of yourself than you ought to. फिर हम अपनी खुद की डिंग मारना कम कर देते हैं और अपने आप को थोड़ा नम्र करते हैं. And then, verse 16, His perfect patience will truly come alive to your soul. और उसके बाद कहता है कि उसकी जो बहुत बड़ी दया है, सबसे बड़े पापी यीशु मसीह, सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता में दिखाएगा, उसके ऊपर दिखाया जाएगा. Paul says in verse 16 that even though he was and he is the worst of sinners, he says, I received mercy for this reason. What's the reason? That in me, as the foremost, Jesus Christ might display His perfect patience as an example to those who were to believe in Him for eternal life. पौलुस कहता है सबसे बड़ा पापी था मैं, और उसके बाद वचन 16 में कहता है, पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं. Here's a terrible sinner who persecuted the church, and Jesus looks at him with mercy and saves him. Why? यहाँ पर ये सबसे भयानक पापी है जो कलीसिया को तकलीफ पहुंचा रहा है. यीशु मसीह उसको देखते हैं, उसके ऊपर दया करता है. क्यों? To demonstrate that divine patience can stretch that far and that wide to save someone who's actually trying to destroy the gospel. और देख सकते हैं कि ये जो परमेश्वर का जो दया है, ये जो सहनशीलता बताया गया यहाँ पर, ये इतना ज़्यादा है कि वो इतना ज़्यादा गंभीर पाप को भी ढक सकता है और उसके ऊपर भी अनुग्रह ज़्यादा हो सकता है. And so Jesus said, Paul, I'm going to make you an example of my perfect patience so that people in the future, when they hear about your testimony, will know that there is a God who will give eternal life to anyone who believes in me. तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे बताता है कि मैं तुम्हें इस रीति से तैयार करूँगा कि मेरी पूर्ण सहनशीलता तुम्हारे अंदर देखेंगे, और जब लोग देखेंगे तुम्हें तो देखेंगे कि हाँ ये परमेश्वर है जिसने इनको तैयार किया है अपनी सेवकाई के लिए, अपने काम के लिए. Think about how much patience you have. First of all, just towards the people that you love. That's pretty easy, isn't it? कितना सहनशीलता है हमारे अंदर, कितना धैर्य है हमारे अंदर, जो हम देखते हैं कि जो भी आसपास के जो प्रेम करने वाले लोग हैं उनके लिए तो आसान हो जाता है. How much patience do you have though towards random strangers? अजनबियों के लिए कितना सहनशीलता है आपके अंदर, धैर्य कितना है? People who cut you off on the street. जो आपके विरुद्ध थोड़ा गलती भी कर दे, मान लो चल रहे हो, आपसे आगे निकल जाए, इधर उधर आपका थोड़ा लगे नुकसान पहुंचा दिया है. And then how about this? What about the people who have actually legitimately hurt you? लेकिन उन लोगों के लिए क्या, उन लोगों के प्रति आप में कितने सहनशीलता है जो लगता है कि आपको दुख पहुंचाया है, चोट पहुंचाया है. But Jesus himself, the God, the Son of God, the King of Kings, had perfect patience on someone who was trying to destroy him. यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर का पुत्र जो है, यहाँ पे यीशु मसीह जो सिद्ध हैं, यहाँ पे देखते हैं कि इसका सहनशीलता इतना ज़्यादा है उस पर जिसने उसके लोगों को परेशान किया है, कलीसिया के लोगों को परेशान किया है, उसके ऊपर इतना दया. So that anyone who believes in him will have eternal life, which is a personal, eternal relationship with God and with his Son. ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा, जो वो जीवन जो उसके अंदर वो सिद्धता का जीवन मसीह के कारण दिया जाता है, मसीह ने दिया है. So eternal life really is for anyone, isn't it? Anyone who believes. तो ये जो व्यक्तिगत अनंत जीवन है ये सबके लिए है, जिसके लिए जो भी विश्वास करता है उसमें. And God is just being patient all the time. और हम देखते हैं कि परमेश्वर धैर्य रखता है, हर समय धैर्य रखता है. 2 Peter 3:9 says this. The Lord is not slow about his promise of the gospel, as some count slowness. Meaning God doesn't work on our timetable or schedule,
But God is patient toward you, not wishing for any to perish, but for all to come to repentance. दूसरा पत्रस 3:9 में कहता है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसा देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले. Think about it. Everyone is rejecting him all the time. The whole world that he created keeps on rejecting him. सोचो, जिस पूरी दुनिया को बनाया, जिस पूरी सृष्टि को सृष्टि किया उसने, वो सब उसको नकार रहे हैं, उसका इनकार कर रहे हैं. And even though, we're believers, it's true, we can be full of unbelief and doubt and a love for sin. यहाँ तक कि विश्वासी होने के बावजूद भी हमेशा संदेह हो सकता है, संकोच हो सकता है, बुराई हो सकता है, पाप हो सकता है. But he's patient. लेकिन उसके बावजूद भी वो धैर्य धरा हुआ है. He's perfectly patient. वो पूरी सहनशीलता दिखा रहा है. And I hope you know that. I hope you believe that. हम समझते हैं कि हो सकता है आप जानते हो, केवल जानते नहीं परंतु विश्वास करते हो आप इस पे. Because that will make you a more patient person, first of all. क्योंकि अगर ये एहसास आप में है तो वो आपको और भी ज़्यादा सहनशील बनाएगा. That'll make you long suffering. और वो बताएगा कि किस तरह से दुख के समय में सामना करना. That'll make you forbearing with others and forgiving, but in a cheerful way, in a content way. एक संतुष्टि भरा तरीके से, या फिर आप एक दूसरे के सह लेंगे, एक दूसरे के साथ चल पाएंगे, एक दूसरे के समस्याओं में भी सहन कर पाएंगे. But it also does something else in you, and this is point number 3, the only reasonable response, verse 17. और तीसरा बिंदु जो है, इसमें एकमात्र उचित प्रतिक्रिया यहाँ पे क्या हो सकता है, एकमात्र जवाब क्या हो सकता है. तीसरा बिंदु, If you know the greatest sentence in the world, and you think about Paul's example and seeing Christ's perfect patience in him, and that is now real for you, what comes out of you? तो सबसे पहले हमने देखा कि दुनिया का सबसे बड़ा वाक्य क्या हुआ, और उसके बाद हमने देखा पौलुस के जीवन से और मसीह के जीवन से कि हर एक के लिए सबसे बड़ा जो मनुष्य में आदर्श ठहरा. और उसके बाद हम तीसरा देखते हैं कि इसमें से हमारा सबसे बड़ा प्रतिक्रिया क्या हो सकता है, यहाँ पर हम क्या जवाब दें, हमारा क्या रवैया होगा. Look at verse 17. To the King of the ages, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen. 17 में लिखा, पहला तिमोथी 1:17 में, अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे. आमीन. Paul's natural response upon thinking about Jesus' patience is to praise and worship God the Father. जब पौलुस यीशु मसीह के बारे में सोचता है, उसकी सहनशीलता के बारे में सोचता है, तो वो उसकी महिमा कर रहा है, यहाँ पे उसकी आराधना कर रहा है पौलुस. Psalm 147 verse 1 says that praise fits, it's fitting for believers. तो वहाँ पे भजन संहिता 147 में बोला गया है, जो स्तुति है, वो जो प्रशंसा है, वो एक विश्वासी के लिए बिल्कुल ठीक है, सही रीति से उचित है. The psalmist says that praise, it makes sense. It's the only thing, it's the only logical response for someone who knows the Lord. तो बोला, अगर एक विश्वासी सचमुच में अगर परमेश्वर को जानता है तो उसका एक ही उचित प्रतिक्रिया है कि वो उसकी स्तुति करे परमेश्वर की. So it's that when we are praising and worshiping God, we're doing the most natural thing a believer is meant to do. जब हम परमेश्वर की स्तुति कर रहे होते हैं, आराधना कर रहे होते हैं, तो सबसे स्वाभाविक काम कर रहे होते हैं हमें, जो एक विश्वासी होने के नाते सबको करना चाहिए. Praise is our soul's new language when we become children of God. जब हम परमेश्वर की संतान बनते हैं तो हमारे हृदय का एक नया भाषा होता है, जो जिस भाषा में बोलते हैं उसे बोलते हैं स्तुति, आराधना परमेश्वर की. So look at how Paul praises God as he concludes his testimony in verse 17. वचन 17 में देखते हैं कि किस तरह से पौलुस यहाँ पे परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा है जब अपनी गवाही को खत्म कर रहा है यहाँ पे. And there are 5 points about God that he makes, and we're going to just run through these very quickly. तो यहाँ पे 5 बिंदु देखते हैं जो पौलुस बताता है परमेश्वर के बारे में. इसके बारे में देखेंगे. The first thing that is in this song of praise is that point A, God is king. तो सबसे पहले हम देखते हैं जो स्तुति प्रशंसा पौलुस कर रहा है, वहाँ पे ये कह रहा है कि परमेश्वर राजा है. Psalm 10:16 says this, that the Lord is king forever and ever. भजन संहिता 10:16 में कहता है, यहोवा अनंत काल के लिए महाराजा है, हमेशा के लिए. He's the king of the ages. From eternity to eternity, there is only one ruler of the universe, and that's God. और परमेश्वर वो हमेशा के लिए, सदैव के लिए, अनंत काल के लिए एक ही शासक है इस पूरे सृष्टि का. And what Paul is saying is, think about who had regard for you when you were a miserable sinner. It was the king of the universe. तो बोले कि जब तुम सबसे दुखी, सबसे बुरे पापी थे, तो तुम्हारा किसने यहाँ पे आके हिसाब किताब लिया? जो पूरे दुनिया का ब्रह्मांड का परमेश्वर है, जो राजा है, उसने. Point B, this king is immortal. और यहाँ पे जो दिखते हैं तीसरे का दूसरा बिंदु में कि परमेश्वर अविनाशी है वो. In fact,
this praise here matches verse 16 of chapter 6, so that the book begins and ends with praise. और देखते हैं कि ये जो बोला गया अविनाशी के बारे में बोला गया है जो खत्म नहीं होता है, इसी पहला तिमोथी के 6:16 में भी शुरुआत में देखा हमने, अभी समापन में भी देखते हैं 6:16 में भी. That God is immortal means that God has the power of indestructible life. तो बोले परमेश्वर का अमरता का जो अविनाशी का है उसका अगम्य ज्योति की तरह उसका सामर्थ्य है. It means that he cannot get old. इसका ये मतलब है कि वो ऐसे बूढ़ा नहीं होता, पुराना नहीं होता है. It means he cannot change at all. He can't decay. He doesn't get wrinkles. वो ऐसे बूढ़ा नहीं होता है, झुर्रियाँ नहीं आता उसमें, वो पुराना नहीं होता है. No one gives him life. He has life within himself, and he gives it to us, and he takes it away. तो किसी के अपने आप में जीवन नहीं है, जीवन उसमें है, वो जीवन देता है, वही जीवन लेता है. And he has given us life, hasn't he? और उसने भी हमें जीवन दिया है, हमारा जीवन जो उसी का है. This immortal king is also, point C, he's invisible. और यहाँ पे हम देखते हैं कि अविनाशी परमेश्वर है, और जो तीसरे का सी देखते हैं, तीसरा बिंदु देखते हैं, परमेश्वर अदृश्य है. He is not an idol that you can make or you can touch or you can see. ये कोई मूर्ति नहीं है, बना लिया उसको छू भी सकते हैं, उसे देख भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कुछ भी. John 4:24 says this, God is spirit and we must worship him what? In spirit and in truth. यूहन्ना 4 में बताता है परमेश्वर वो सच्चाई है और वो आत्मा है. He can only be seen how? वो देख सकते हैं, हम उसे कैसे देख सकते हैं? With the eyes of faith. वो विश्वास की आंखों से देख सकते हैं उसे. So in Christianity, truly, this is right. Believing is seeing. तो इसीलिए जो मसीहत में हम देखते हैं, विश्वास करने का मतलब है सचमुच में वास्तविक रूप से आप देख रहे हो. Immortal king, invisible king, and then point D, he is the only God. हम देखते हैं वो अविनाशी परमेश्वर है, अदृश्य परमेश्वर है. उसके बाद देखते हैं एकमात्र परमेश्वर है वो. Deuteronomy 6:4, Israel's great confession. Hear, O Israel, the Lord is our God. Yahweh is our God. The Lord is one. तो हम देखते हैं इजराइली लोग जो है वो जब अपने अंगीकार कर रहे थे तो व्यवस्था विवरण के 6:4 में कहता है, हे इजराइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है. Not many gods, not multiple ways and truths and lives, just one. बोला कि बहुत सारा अलग अलग देवी देवता नहीं है, बहुत सारा अलग अलग तौर तरीका नहीं है, ये भी वो भी रास्ता नहीं है, केवल एक ही परमेश्वर है. He is in a category all by himself. बस वो अपने आप में एक श्रेणी है, अकेला वही है. That's what it means to be God, that there is no one and nothing to compare him to. यही तो मतलब होता है परमेश्वर होने का, कि उसके जैसा और कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है. What a great God we get to serve, right? कितना महान परमेश्वर है जिसकी हम सेवा कर रहे हैं. And what an amazing thing that this kind of God, this king, would have perfect patience on each of us. और देखते हैं कि इससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि इस तरह के परमेश्वर जो पूरी तरीके से सहनशीलता के साथ हमारे साथ पेश आता है. And so, what's the only way that you can end after calling God all of these wonderful things? It's like Paul is running out of words. तो क्या हो सकता है, एक प्रतिक्रिया क्या हो सकता है, अंतिम प्रतिक्रिया क्या हो सकता है, ऐसे परमेश्वर के प्रति हम किस तरह से सामने आ सकते हैं? और यहाँ पे वो देखते हैं पौलुस जब सब कुछ कह चुका है तो इस तरह से वो बताता है. He says, to this God be honor and be glory forever and ever. Amen. और ये कहता है कि एकमात्र ऐसे परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे. इस तरह का लाइन से समाप्त होता है. In fact, the word of the ages and forever and ever are the same words. और यहाँ पे जो बोला गया है कि महिमा युगानुयुग जो बोला गया है हमेशा के लिए, वो एक ही शब्द है. And the reality of who God is and the fact that that God would love him like this is exploding his mind. तो ये जो सच्चाई है कि ये परमेश्वर कौन है और इस तरह का परमेश्वर जो है, ये सोच से परे लगता है कि ये कितना महान है. And Paul's only conclusion is to just burst out in God glorifying worship and to say it that must be done for all eternity, which it will be. तो यहाँ पे पौलुस का प्रतिक्रिया देखते हैं कि एकमात्र प्रतिक्रिया कि वो जब देखता है इतना भव्य परमेश्वर को देखता है तो वो परमेश्वर की स्तुति गान में करने लगता है, वो प्रशंसा करने लगता है और बोलता है ये हमेशा के लिए ऐसा ही प्रतिक्रिया परमेश्वर के प्रति होना चाहिए. And so the only way to end something like this is just to say amen, which is to say yes Lord, this is true. तो कुछ ऐसा खत्म करने के लिए हम बोलते हैं आमीन, कि ऐसा ही होना चाहिए. हाँ प्रभु परमेश्वर. And so let me just finish with two closing thoughts, closing applications here. यहाँ पे हम दो चीज़ देखेंगे खत्म करने के लिए, इसको समापन करने के लिए. Let me ask you this question. Do you praise God and do you want to praise God? तो सबसे पहला है, क्या परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं आप, और या क्या परमेश्वर की प्रशंसा करना चाहते भी हैं? And this is point A then. Live close or live closely with your king.
तो और उसमें पहला बिंदु है इसमें कि अपने राजा के बहुत करीब रहो, That this king has drawn near to us. क्योंकि ये राजा हमें पास लाया है, वो करीब आया है, He's accessible to us. अभी वो हमारे लिए उपलब्ध है। He's not a far off God that we have to go through outer space in order to reach. तो वो बहुत दूर नहीं है कि कोई हमें जाना है उसके पास में, ऐसा कुछ। He's near and his word is near and it's in your mouth right now. वो बहुत नजदीक है, उसका वचन बहुत नजदीक है, उसका वचन खुद हमारे अंदर है। And this word can be in your heart. और ये जो परमेश्वर का वचन है ये हमारे हृदय में भी होने की जरूरत है। Spend time with him. He loves when you spend time with him. Spend time with him in the word and in prayer. और उसके साथ समय बिताएं। उसके साथ समय कैसे बिताएंगे? वचन में, प्रार्थना में। वो पसंद करता है कि उसके बच्चे उसके साथ समय बिताएं। And I know that's so basic, right? But that is the most essential thing that we can do to live closely and to be near to our great God and Savior. ये बिल्कुल मूलभूत है, ये समझ लो नींव है, ये बिल्कुल बहुत सामान्य है कि सबसे अच्छा अगर कुछ कर सकते हैं बेहतर तो वो कि हम अपने परमेश्वर के करीब रहें। Because in the pages of Scripture, He has not just revealed His thoughts, He's revealed His heart, He's revealed His plans for us, He's revealed everything. यहाँ पे हम देखते हैं कि सिर्फ उसके विचार नहीं देखते हैं, उसकी योजना देखते हैं, वो सारी चीजें जिसकी हमें जरूरत है वो सब कुछ उसने पहले बता दिया अपने पवित्र शास्त्र के पन्नों में। And it's a simple illustration. If you want to know someone, I have to get to know Kundan, I have to talk to him, I have to spend time with him. अगर किसी को आप जानना चाहते हैं व्यक्तिगत रूप से तो उसके साथ समय बिताना पड़ेगा, थोड़ा उसके साथ रहना पड़ेगा, संगति में रहना पड़ेगा। And this is exactly why He's given us His written, recorded word. इसीलिए तो यही तो इसका एक मकसद है कि क्यों परमेश्वर ने अपने पवित्र शास्त्र को हमारे लिए दिया है। And the second thing and the last thing is this, going back to Paul's testimony. हम वापस चलते हैं पौलुस की गवाही के ऊपर। दूसरी चीज भी ये है, If each of us thinks of ourselves as the foremost of sinners, what kind of church will this be? अगर हम सब सोचें, अगर हम सब व्यक्तिगत रूप से सोचें कि सबसे बड़ा पापी मैं हूं, अगर ऐसा सोचें तो किस तरह का कलीसिया होगा ये? I'll tell you what kind of church it'll be. It'll be the kind of church where you want to walk into. तो वो उस तरह का कलीसिया होगा जहां पर आप खुशी खुशी जाना चाहेंगे बार बार। It'll be a church that practices patience towards each other. ये इस तरह का कलीसिया होगा जहां पर धैर्य सहनशीलता एक दूसरे के प्रति होती है। It'll be a church that speaks the truth in love. वो इस तरह का कलीसिया होगा जहां पर कि सच्चाई बोली जाती है प्रेम में। It'll be a church where people are not putting others down to lift themselves up. इस तरह का कलीसिया वो नहीं होगा जहां पर अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए नीचे लोगों को दबाना पड़े, ऐसा नहीं होगा। It'll be a church where peace and unity are taken very, very seriously. एक कलीसिया यहाँ पे ऐसा होगा जहाँ पर शांति और एकता को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। It'll be a church where the gospel is preached because you know that's the only way that sinners can get saved and that's how you got saved. तो इसलिए ये कलीसिया ऐसा हो सकता है जहाँ पर सुसमाचार प्रचार किया जाएगा क्योंकि आप सबको पता है कि यही एक तरीका है जहाँ पर एक पापी अपना मन फिरा सकता है सुसमाचार के द्वारा। It'll be a church where people can feel free to confess their sins, not to get away with their sins, but so that they can be helped in their struggle. ये कलीसिया ऐसा होगा जहाँ पर एक पापी आएंगे वहाँ पे अपने पापों का अंगीकार करेंगे, इसलिए नहीं कि उसे पीछे छुड़ाना है, लेकिन ये सच्चाई को जान करके माफ किया गया है। And it'll be a church where when people hear others confessing their sins, they don't just judge them and kick them out, but they love them back to spiritual health. एक कलीसिया ऐसा होगा यहाँ पर जब आप दूसरों को देखते हो कि वो आपके दिल से निकाल के कुछ बोल रहे हैं, अपने पाप का अंगीकार कर रहे हैं, तो उसके जानकर उसके बारे में उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे, उसे नीचे नहीं दबाएंगे, लेकिन उसका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। It'll be a church where marriages are just singing loudly of the gospel as husband and wife both know in their own hearts that they themselves are the chief of sinners. और ऐसा कलीसिया होगा जहाँ पर शादीशुदा जीवन, वैवाहिक जीवन में पति और पत्नी किस तरह से चीख चीख के बोल रहे होंगे कि ऐसे कलीसिया जहाँ पर उनका सुसमाचार केंद्रित जीवन उनका दिख रहा है, इस तरह का कलीसिया होगा। It'll be a church where with families you have parents who are not proud over their children but can repent towards even their children when they sin against them. और यहाँ पे देखेंगे माता पिता अभिभावक किस तरह से पालन पोषण करता अपने बच्चों का, कि अपने बच्चों को जब देखते हैं तो वो घमंड ऐसे ही नहीं रहेगा, लेकिन जब उनके बच्चों को पाप के अंगीकार करना होगा तो उसमें भी सहायक होंगे। We can go on and on and on because God's patience and grace is so wonderful and there's so many aspects to it. हम इससे और भी आगे चल सकते हैं कलीसिया का, और भी कैसा कलीसिया वो होगा इस तरीके का, क्योंकि परमेश्वर का जो धैर्य है, उसका सहनशीलता है, वो उसका जो अनुग्रह है वो बहुत है। My prayer for CBC, for our church, and for all of us is that we would be a people so struck by the patience of Christ that we would see ourselves as the chief of sinners.
तो हमारा प्रार्थना यही होगा, आसमान जी का प्रार्थना यही होगा इस कैपिटल बाइबल चर्च के लिए कि जब हम देखेंगे अपने पापों को, अपने बुराई को, और हम इस तरह से अपना पहचान जानेंगे कि किस तरह से पापियों में सबसे बड़ा पापी हम हैं, खुद के पापों को देखना। And when you say that and believe that about yourself, know this, that the grace of Christ Jesus will overflow to you. और हम जब इस तरह से अपना सही पहचान कर पाएंगे कि किस तरह से सबसे बड़ा पापी हम हैं, और परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायकी से हम पर उड़ेला जाएगा। Let's pray. आइए हम दुआ करते हैं। Father God, we thank you so much for your perfect patience towards us. पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपके सिद्ध सहनशीलता के लिए हम सब के ऊपर। Thank you, Father. Thank you for saving us and forgiving us of all of our sins. धन्यवाद देते हैं पिता हम सबको बचाने के लिए, हमारे सारे पापों को माफ करने के लिए। Help us to be a people marked by your patience so that we would see ourselves properly. प्रभु हमें मदद करें कि हम भी पूरी सहनशीलता को लागू कर सकें, ताकि प्रभु परमेश्वर हम आपके द्वारा आदर किए जाएं। May each of us see ourselves as the chief of sinners, not comparing ourselves to others. हम सब प्रभु हमें इस तरह से मदद करें कि हम सबसे बड़ा पापी अपने आप को समझें और दूसरे से तुलना ना करें। May that produce a greater humility ताकि प्रभु उससे विनम्रता हो सके and a love for Christ and a love for one another. ताकि हमारा प्रेम प्रभु यीशु मसीह के लिए और दूसरों के लिए बढ़ता जाए। So we thank you again for the perfect patience of Christ Jesus. It's in his name we pray. और ये सारे धन्यवाद देते हैं हम प्रभु यीशु मसीह के सबसे पूर्ण सहनशीलता के लिए, और प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन।